Good morning, dear students. Welcome back again in your computer class. In the last time, you were discussing about chapter number 6, first step in Java. And we have completed our 3 topics already before your unit test. That was your introduction in Java. This one. First, introduction in Java. Second, Java compilation. And we have already discussed about Java virtual machine. Now, today we will discuss about the different types of data and what are variables, right? So let us move to the new topic, identifiers. So identifiers से पहले we will study about some basic concepts like lexical issues. Now, what are lexical issues? Let us look at the atomic elements of Java. Java is what? It is a collection of white spaces, keywords, literals, operators, and identifiers. So when we make our Java program is what? That is generally made to solve a problem. That means if we are having any problem, so using some steps or using some instructions, we can make a Java program. So when we make a program, we can have the collection of white spaces, keywords, literals, operators, and identifiers. Now one by one we will discuss each and everything, right? So first thing is what? Your white space. White space means the space between two words. White space means the space between two words. For example, if it is written here, identifiers are. So in between these two words, we are having one space to separate the two words. So that space is actually known as your white space in Java. यानी कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दो वर्ड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको जावा में क्या बोलते हैं? वाइट स्पेस. देन वी विल स्टडी अबाउट ऑपरेटर्स. Identifiers what? These are the fundamental building blocks of a program and used as the general terminology for the names given to the different parts of the program. Like identifiers, if I say what is your name, so you will tell your name to me, right? So what is that? Your name actually helps me to identify you. मीन्स दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर्स. वो आपका जो नेम है वो आपका क्या है? आइडेंटिफायर है. माई नेम इज़ एक्चुअली माई आइडेंटिफायर. मेरा जो नेम है वो मुझे आइडेंटिफाई करता है कि हु आई एम एक्चुअली. इन द सेम वे वी क्रिएट द आइडेंटिफायर्स इन द जावा प्रोग्राम ऑल्सो, राइट? एंड द आइडेंटिफायर्स जो होते हैं दैट आर गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम. मतलब प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो हम उनकी नेमिंग भी कर सकते हैं. तो जब हम नेमिंग करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो दैट आर एक्चुअली दोज नेम्स आर एक्चुअली नोन एज योर आइडेंटिफायर्स. आई होप इट इज़ क्लियर. देन नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द रूल्स टू फॉर्म आइडेंटिफायर्स. अब आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. Before starting with the rules, let me give you one very basic examples about the identifiers. Like in maths, you write, if you want to add two numbers, so what you will do? You will take one number 10, you will take one number 20, and if you will perform the addition operation, so you will get what? 10 plus 20, that means 30, right? But in Java, what will happen when you make a program? So you know what? When these numbers 10 and 20 will get stored, so it will stored in the memory. आपको पता है कि जब आप कीबोर्ड से कोई इनपुट देते हो, कोई भी कीबोर्ड से इनपुट जाता है तो वो हमारा मेमोरी के अंदर जाके क्या होता है? स्टोर होता है. आफ्टर स्टोरिंग सम प्रोसेसिंग हैज़ बीन डन ऑन दैट स्टोर्ड डेटा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज हेयर योर नंबर इज़ 10. आपने नंबर प्रेस किया फ्रॉम द कीबोर्ड 10, सो इट विल गेट स्टोर्ड इनटू द मेमोरी. In the same way, you press suppose from the keyboard 20, so 20 will also get stored. But for these memory locations we will have some name also. जैसे कि 10 का क्या नेम है? तो 10 किसी एक आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर कर रहे हैं. सपोज द नेम ऑफ दिस इज A. So what is A? A will behave as a identifier, and this identifier actually is also known as variable.
इस आइडेंटिफायर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो 10 को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसको एक नेम प्रोवाइड कर दिया, 10 का नेम दे दिया एक, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट 10? ए, ठीक है। इन द सेम वे आई विल गिव द नेम टू दिस वैल्यू 20, सो आई एम गोइंग टू गिव सपोज बी, तो B इज़ दी अनदर आइडेंटिफायर, B एक अपने आप में आइडेंटिफायर है विच एक्चुअली कंटेन्स द वैल्यू 20 इन द मेमोरी। नाउ इफ आई विल परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन, सो आई विल राइट व्हाट, A प्लस B। सो A प्लस B का मतलब क्या हो गया, द वैल्यूज ऑफ A एंड B विल गेट एडेड ऑन, दैट मीन्स 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 विल बी व्हाट, योर 30, सो योर फाइनल आंसर विल बी 30. Are you getting it? And that 30 will also get stored into some identifier. Likewise, जैसे कि आपका सपोज यहाँ पे आंसर स्टोर हो गया है 30 एट दिस मेमोरी लोकेशन, तो इस मेमोरी लोकेशन का भी अपना कुछ नेम होगा, ठीक है। तो उसको भी हम किसी न किसी के अंदर स्टोर कराएंगे। सो दैट सपोज आई एम एज्यूमिंग C, तो C इज़ द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर विच स्टोर द सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। अब ये जो आइडेंटिफायर्स हम बना रहे हैं A, B, C, these are identifiers, right? But to make the identifiers we are having some rules how to make the identifiers. So let us start with the first one. First rule says identifiers can have alphabets, digits, underscore and dollar sign. मीन्स किसी भी आइडेंटिफायर के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर अल्फ़ाबेट्स? अल्फ़ाबेट्स आर कैपिटल A to Z और इट मे बी स्मॉल a to Z, करेक्ट। देन इट सेज इट कैन हैव डिजिट्स ऑल्सो। किसी भी वेरिएबल का नेम बनाने के लिए, आइडेंटिफायर लिखने के लिए हम डिजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ डिजिट्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9, एनी नंबर दैट इज़ composed of 0 to 9 digits will be actually a new number, ठीक है। देन आई से अंडरस्कोर। नाउ व्हाट इज़ दैट अंडरस्कोर? अंडरस्कोर का मतलब होता है जो ये डैश साइन आपको दिख रहा है, लुक एट हियर, डैश CH-K, तो ये जो डैश साइन लगा हुआ है ना नीचे की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्कोर, राइट। अंडरस्कोर साइन जो आता है वो नीचे बेस में आता है ऑफ द वेरिएबल्स। देन डॉलर साइन, व्हाट इज़ द डॉलर साइन? दिस वन, this is your dollar sign, right? So when you make the name of the variables, the dollar sign is also allowed. Then the next rule says what? They must not be a keyword. कोई भी आइडेंटिफायर का नेम कीवर्ड नहीं हो सकता है। नाउ व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर सम स्पेशल वर्ड्स, कीवर्ड्स आर सम स्पेशल वर्ड्स विच कैन नॉट बी यूज टू नेम द आइडेंटिफायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ, तो जैसे कि हमारा लॉक होता है ना, लॉक होते हैं हमारे पास, तो हर लॉक की अपनी अलग अलग की होती है, लेकिन एक की जो होती है वो किसी दूसरे लॉक को ओपन नहीं कर सकती। मीन्स ईच एंड एवरी लॉक विल हैव एन इंडिविजुअल की एंड दैट की कैन नॉट बी यूज टू ओपन द अनदर वन, राइट। सो यानी कि उस की का अपना एक अलग सा सिग्निफिकेंस है, उस वो जो की है एक्चुअली उसका अपना एक अलग मीनिंग है, ठीक है। आप उस की को किसी और लॉक के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दैट लॉक विल नॉट गेट ओपन इन दैट केस इफ़ यू विल अप्लाई। इन द सेम वे कीवर्ड्स का भी अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जैसे की का एक अलग से मतलब होता है, ऐसे ही कीवर्ड्स का भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग डिस्क्राइब होता है और हम उसको एज आइडेंटिफायर वी कैन नॉट यूज़ इट, राइट। और बूलियन लिटरल और नॉन लिटरल, यानी कि कोई भी बूलियन वैल्यू या नल वैल्यू नहीं हो सकती है। तो ये अभी इट इज़ जस्ट आउट ऑफ स्कोप नाउ, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस दैट व्हाट इज़ बूलियन लिटरल, व्हाट इज़ नल लिटरल, सो वी आर गोइंग टू लीव दिस वन, ठीक है। यू ओनली हैव टू लर्न द सेकेंड पॉइंट। देन द थर्ड वन इज़ आइडेंटिफायर्स नेम मस्ट नॉट बिगिन विद द डिजिट। आइडेंटिफायर का जो नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, clear? Like I cannot write 9A, this is incorrect identifier name, but I can write A9 because it says ki cannot start from a digit but it can start from an alphabet or not? Yes, of course, so it is valid. Then the next rule, fourth rule says they can be of any length. दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मतलब कितना भी बड़ा आप वेरिएबल का नेम ले सकते हो, जैसे कि इफ़ आई राइट ए, तो ए इज़ अ सिंगल वेरिएबल नेम, है ना। इन द सेम वे आई कैन टेक A B C,
is equal to 10. I can also write number is equal to suppose 153. So what is number? ये जो number ये क्या है? This is actually the identifier. And what is this 153? What is this 153? It is actually a value. 153 is a value and number is a identifier. Now next rule says Java is case sensitive. That is uppercase letters and lowercase letters are treated differently. इसका मतलब क्या है? जावा केस सेंसिटिव है तो वो अपर केस को और लोअर केस को डिफरेंट ट्रीट करता है. इसका मतलब इफ़ यू इन जावा प्रोग्राम इफ़ यू राइट कैपिटल A is equal to 10 and once you write capital A is equal to 10, now both these are different identifiers. These both are different identifiers. Why? Because the first one is written in capital letters, the second one is written in small letters. दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं ना, पहला कैपिटल में है दूसरा स्मॉल में है, यानी कि फर्स्ट वाला जो ए है वो अपर केस में है और जो सेकंड वाला ए है दैट इज़ इन लोअर केस. सो अगर आप अपर और सेम लिख रहे हो लेकिन अगर अपर और लोअर में चेंज कर देते हो सो वो क्या होगा? अलग अलग होता है. वन मोर एग्जाम्पल, इफ़ आई राइट A 9B. Now if I ask you, is that valid? Yes, of course it is valid because according to the first rule it says कि identifiers can have alphabets and digits. Yes, if in place of this I write A9B, now is both these identifiers names are same or different? These are different. Reason? Because फर्स्ट वाले में आप देखो आपने जो A बनाया है दैट इज़ स्मॉल, सेकेंड वाले आइडेंटिफायर नेम में जो आपने A बनाया है दैट इज़ कैपिटल. सो दैट इज़ द रीज़न. दैट मीन्स दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट जावा इज़ केस सेंसिटिव. नाउ लुक एट हियर सम वैलिड आइडेंटिफायर नेम्स आर गिवन हियर. Look at the first one. First is my file. So my file is valid or not? Yes, it is valid. According to the first rule it says कि अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी और डॉलर साइन भी. तो ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेना ज़रूरी है. हो सकता है सारे अल्फ़ाबेट्स यूँ आइडेंटिफायर के नेम के अंदर, है ना. सारे अल्फ़ाबेट्स भी तो हो सकते हैं. जैसे माई फाइल में सारे क्या हैं? ऑल अल्फ़ाबेट्स हैं. सो दिस इज़ वैलिड. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. डेट 9_7_77 वैलिड है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल. ठीक है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं. अल्फ़ाबेट कौन से हैं सेकेंड वाले एग्जाम्पल में? DATE. DATE क्या है? दीज आर योर अल्फ़ाबेट्स. इफ़ आई आस्क यू विच वन आर द डिजिट्स, तो डिजिट्स आर 9777. इफ़ आई आस्क यू वेयर इज़ द अंडरस्कोर साइन, सो विच वन इज़ द अंडरस्कोर साइन? दिस, ये और ये. This is your underscore. Then if I ask you, is there any dollar sign? No, because it is not compulsory that all the things should present in a variable name, in the identifier name. Then the third example is Z2 to Z9. This is also valid. Q, combination of alphabets and numbers. Next one, A to Z. Valid again, combination of alphabets. First rule. Look at the next one. My file, again valid, combination of alphabets. But the first one my file and this one second my file, ये क्या है? दोनों अलग अलग हैं. क्यों? Because Java is case sensitive, right? Look at the next. underscore DS. तो underscore हो सकता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी valid है. Look at the next. This is also valid. Look at the next. Combination of alphabets, valid. Next one, underscore CHK, valid. File 13, valid. Q, combination of alphabets and digits. Next one, see. Now this one is given wrong in your book. It is what? APET question mark. Now question mark is not allowed. हमने क्या पढ़ा था? एक्स्ट्रा साइन में सिर्फ क्या अलाउड होता है? ओनली डॉलर साइन and underscore sign is allowed. So this is what? This is invalid. Got it? So you have to make the correction in your book about this one. This is your invalid, not valid. Then the next one is
$1_2_$10 वैलिड है? यस क्यों? क्योंकि इसमें देखो सारे कॉम्बिनेशंस आ गए हैं. इसमें आपके अल्फ़ाबेट भी आ रहा है, इसमें आपका डॉलर साइन भी है, अंडरस्कोर साइन भी है और डिजिट्स भी हैं. और एंड यू नो कि जो आइडेंटिफायर का नेम है दैट शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट. ओनली थर्ड रूल, लुक एट दिस, फोकस दिस वन, थर्ड रूल, इट सेज दे मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट. डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, बाकी किसी से भी स्टार्ट हो सकता है. किसी का मतलब कि अल्फ़ाबेट से भी हो सकता है, अंडरस्कोर से भी हो सकता है और डॉलर साइन से भी हो सकता है. Now suppose if I write suppose divide ABC. Now is that valid? No, because divide is a symbol which is not allowed. Okay. Now the following are some invalid identifiers. अब कुछ examples ऐसे हैं जो invalid के given हैं. ठीक है. See, the first example is this data. Now this is not the sign of underscore, this is actually dash. डैश में और अंडरस्कोर में डिफरेंस क्या होता है? इफ़ आई राइट ए दिस एंड वन इज दिस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. क्या आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि व्हाट आई हैव रिटन नाउ? जो लोअर पार्ट में लिखा हुआ है ना नीचे बेस में, ये अंडरस्कोर होता है. जो दोनों के बीच में सेपरेशन की तरह यूज़ करते हैं दैट इज़ योर डैश साइन, जो बीच में लगाते हैं मिडल में. तो यहाँ पे जो आपने ये साइन लगाया है माइनस वाला, ये क्या है एक्चुअली? दिस इज़ योर डैश साइन, है ना. तो इसलिए दिस इज़ नॉट वैलिड. नेक्स्ट वन, 29 CLCT. 29 CLCT is actually what starting with a digit. That's why it is invalid. 29 is not allowed now. So 29 is what? You're invalid. Next is break. Break is actually a keyword. That's why it is not valid. Next is my dot file. Again नॉट वैलिड. क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स, देखो लास्ट वाला जो है इसमें क्या लगा हुआ है, इट कंटेन्स डॉट साइन एंड एज यू नो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ऑफ आइडेंटिफायर इट सेज कि डॉट साइन या एक्स्ट्रा कोई भी सिंबल इज नॉट अलाउड. सो दैट इज द रीजन इट इज़ इनवैलिड. गॉट इट? I hope all the instructions are clear to everyone. Now moving on to next topic, keywords. Now keywords are what? These are the reserved words that convey some special meaning to the compiler. अभी हमने पढ़ा था कीवर्ड, जैसे लॉक वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था ना कि हर लॉक की की अलग होती है. ऐसे ही कीवर्ड्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है फॉर द कंपाइलर. And now what is compiler? Compiler is what? It is a language translator which is used to convert our source language into the machine language, because whatever we speak, computer cannot understand that language. Computer can understand only मशीन लैंग्वेज. वो कौन सी समझ में आती है कंप्यूटर को? मशीन लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज. तो जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम लिखते हैं जिस लैंग्वेज में, वो कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वी नीड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर. सो कंपाइलर इज़ व्हाट? कंपाइलर इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर. तो कंपाइलर क्योंकि जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर है तो उसके पास, कंपाइलर के पास अपनी डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं. कंपाइलर में कुछ वर्ड्स उसकी डिक्शनरी में ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है? फिक्स होता है. उन फिक्स्ड वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स. राइट? नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि दे कैन नॉट बी, जो कीवर्ड्स हैं दे कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स. उसको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते. जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस किया ब्रेक इज़ अ कीवर्ड. सो ब्रेक कैन नॉट बी यूज्ड एज द नेम ऑफ आइडेंटिफायर. मतलब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ब्रेक इज़ इक्वल टू 10, नहीं लिख सकते. बट आई कैन राइट ए इज़ इक्वल टू 10. दिस इज़ वैलिड बिकॉज ए इज़ नॉट एनी कीवर्ड बट break is a keyword, so that is the reason we cannot use this as a name of identifiers. Fine. Now other than this, in addition to keywords, Java has some following keywords you can say again. कुछ और भी होता है जो फिक्स होता है, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, नल, कॉन्स्ट एंड गो टू.
ये एक्चुअली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फिक्स होते हैं, जो कि जावा के अंदर फिक्स हैं, आप उनको एज आइडेंटिफायर नेम्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते. सो दीज ऑल वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न दिस वन, right? Now other than this, some more keywords are given here. Look at this: abstract, boolean, break, case, char, class, default, if else, and many more keywords are there. When you will go in the upper standard in your 9th, 10th, 11th, 12th standard, then you will learn a number of keywords, right? So this is only the basic concept here. So just few of the keywords are given in your book, but when you will progress to the next class, then you will learn some more keywords name. So all these things, nothing to understand, only learning work is there. You have to learn the name of the keywords, that's it, because these are already fixed. Then next one come constants or literals. Next is your constants and literals. Up to here we will leave, then in the next class we will discuss the new topic. So the last topic for today is your constant and literals. So a data item which does not change its value during the execution of a program means कुछ ऐसे डेटा आइटम जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो. Actually, when you write a Java program to solve a problem, so you give some command from the computer to execute your program. ठीक है. So you need some kind of variable which should not get changed. आपको कहीं पर ऐसे वेरिएबल्स की या ऐसी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है कि जो चेंज नहीं होनी चाहिए. सो फॉर अनचेंजिंग या फिर फॉर फिक्स्ड वैल्यूज़ एक्चुअली वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, एंड वन मोर थिंग, कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट योर लिटरल्स. कॉन्स्टेंट का अनदर नेम क्या है? लिटरल्स. नाउ सी, like we are given here 200. So 200 is a fixed value. 200 is a fixed value and it is of which type? Integer constant. We will study this one. What is integer, what is float, what is character and what is a string. We will learn all these things. ठीक है. अब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जितने भी प्योर नंबर्स होते हैं, प्योर का मतलब विदाउट डेसिमल point are considered to be as integer constant, and it may be positive number or it may be negative number without decimal point. For example, if I say 13, so 13 is an integer constant. If I say minus 13, this is also integer constant. If I write 2168, again an integer constant, means without a decimal point. If I write 0, this is also integer constant. But I would not use minus 0 because in maths there is nothing plus 0 and minus 0. 0 means 0. 0 का मतलब 0 होता है, उसमें प्लस 0 माइनस 0 जैसा कुछ नहीं होता मैथ्स में, राइट? सेम हियर, 0 मीन्स 0. तो विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं दैट आर कंसिडर टू बी इंटीजर कॉन्स्टेंट. नाउ नेक्स्ट वन हियर कम्स फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट. फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, जैसे कि देखो 78.3, right? If I write 13.65, suppose, if I write minus 18.968, so these are float. Float का मतलब होता है जिसमें points आता है, ठीक है? Next one is character. Now it is given wrong here in the book. Character का मतलब होता है कोई भी एक single character. कोई भी एक single character का मतलब कोई भी एक single alphabet. It may be a single alphabet, it may be a single digit, or it may be any other special symbol enclosed in single quotes. Repeating again, कोई भी single alphabet जैसे कि A या फिर suppose Y, capital और small कोई सा भी, या फिर हो सकता है 1, or it may be 9, or it may be plus, or it may be asterisk or any other thing. Only a single character. Character constant का मतलब एक single value enclosed in single quotes. Enclosed in single quotes. This is single quotes. कोई भी character, कोई भी special only one character जो कि single quotes में enclose होता है, that is known as your character constant. I hope it is clear very much. Now look at here, all these are here what your character constant. तो
तो कोई भी सिंगल कैरेक्टर, अगर मैं लिखती हूँ 12 इन सिंगल क्योट्स, सो दिस इज़ रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है? बिकॉज नाउ 1 and 2, इसका मतलब 2 डिजिट्स आ गई हैं, तो 2 डिजिट्स नहीं ले सकते हम कैरेक्टर में. आई कैन टेक ओनली अ सिंगल कैरेक्टर enclosed in single quotes. The last one is here your string constant. String constant का मतलब होता है कोई भी मतलब more than one character, maybe one or more than one character enclosed in double quotes. कोई भी ऐसा सिंगल कैरेक्टर या एक से ज़्यादा कैरेक्टर जो डबल क्योट्स में इनक्लोज होता है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट. जैसे कि इफ़ आई राइट हेलो, सो हेलो इज़ अ वर्ड ना, सो राइट इट इन डबल क्योट्स, so it will become your string. Got it? Next example, if I write a in double quotes, now what is this? है तो एक कैरेक्टर ही, लेकिन क्योंकि डबल क्योट्स में लिख दिया तो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट. तो यहाँ पे ये गलत है, एक्चुअली में ये होना चाहिए था ऐसे. नाउ इट इज़ करेक्ट. ठीक है. सो एनीथिंग विच आई राइट इन डबल क्योट, जैसे कि इफ़ आई राइट ए बी सी in double quotes, so it will become what? String. If I write A B C like this, it is wrong. क्यों? Because more than one character are there. एक से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं तो किस में आने चाहिए? डबल क्योट्स में. और वो किस टाइप के होते हैं? स्ट्रिंग टाइप के. तो अगर एक होगा आपका कैरेक्टर तो किस में जाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट में. और एक से ज़्यादा होंगे तो उसको किस में लेना है? स्ट्रिंग में. सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि सिंगल क्योट्स में कैरेक्टर कांस्टेंट आते हैं, डबल क्योट्स में स्ट्रिंग कांस्टेंट आते हैं. गॉट इट? सिंगल क्योट्स का मतलब आई होप आप सब समझ गए होंगे. दिस इज़ द सिंबल फॉर योर सिंगल क्योट्स एंड दिस वन इज़ द सिंबल फॉर योर डबल क्योट्स. ठीक है. सो this topic is over. So we have discussed about identifiers, the rules how to make the identifiers, what are keywords and what are constants and the different types of constants. So that's it up to here. In the next class we will study the different types of data types. That's all. Thank you and have a nice day.